औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। Respected dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I have chosen a topic of your English book. My name is Bashir Ahmed, teacher from Government High School, Nagaon. It is basically a poem from I Explain a Few Things that has been written by Pablo Neruda. So as far as the central idea of this poem is concerned, the poem is a lamentation. Lamentation in the sense means deep sadness. ये एक दुख भरी कहानी है जिसमें लिखा गया on the Spanish Civil War when a war was waged on Spain, which remarks the terrible bloodshed all over Spain. There was a terrible bloodshed. खून रेजी हो चुकी थी उस पूरे स्पेन के अंदर जब उसके ऊपर वार किया गया, जब उसके ऊपर जंग छिड़ी गई स्पेन के अंदर, पूरा जो ब्लडशेड हुआ था, डिवास्टेशन हुई थी, डिस्ट्रक्शन हुई थी. We all know that war and peace are two phases which determine the fate of a particular country. So if we will look at the fate of a country, if we will look at the destiny of a country, अगर हम किसी कंट्री की मुकद्दर की बात करेंगे, उसके फेट की बात करेंगे, तो दो फेजेस जो हैं इसके लिए काम करती हैं. दैट इज़ वन फेज इज़ वार एंड द पीस. एक तो जंग है और दूसरा अमन. ये दो फेजेस हैं जिससे किसी मुल्क का जो है मुकद्दर बन जाता है. तो एज फार एज द वार इज कंसर्न्ड, वार लीव्स ए प्रॉस्परस नेशन डिस्ट्रक्टेड एंड डिवास्टेटेड. जहाँ तक जंग का ताल्लुक है, जंग जो है एक पूरे मुल्क को तबाह कर देता है, उसको डिवास्टेट करता है, उसकी जड़ें उखाड़ देता है. ऑन द अदर हैंड, इफ वी विल से द पीस इंक्रीजेज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री. पीस जो है, अमन जो है, ये एक मुल्क को तरक्की की राह की तरफ गामजन करता है. सो जो अमन जो है ये एक मुल्क को तरक्की की राह पर, इट गिव्स प्रॉस्पेरिटी, इट इंक्रीज द वेज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी, इट shows the ways of the prosperity of the country. War ruins the beauty of a nation, and the war, it devastates, it gives destruction, gloomy, it ruins the beauty of nation. ये मुल्क की खूबसूरती को तबाह कर देता है. And affects the talented personalities of the nation. वो जो talented personalities of the nation है, टैलेंटेड पर्सनैलिटीज़ ऑफ द नेशन है, ये इनको खा जाती है. जो मुल्क के अंदर जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं. तो आफ्टर मैथ्स ऑफ द वॉर आर डिप्रेशन. तो इफ़ वी विल सी द आफ्टर मैथ्स व्हाट हैपन्स इन द वॉर, एंड उसके जो वार क्या पीछे क्या छोड़ता है, इसके आफ्टर मैथ्स क्या होते हैं. आफ्टर मैथ्स इसके क्या होते हैं, डिप्रेशन, यानी लोग जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. डिवास्टेशन, तबाही मचाता है, एंड मिजरी, और बुरे हालात पैदा करता है. सो एवरी नेशन इन द वर्ल्ड, दे शुड प्रेफर पीस इंस्टेड ऑफ वार, बिकॉज यू हैव सीन दैट वार creates devastation, destruction, agony, misery, and the peace increases the prosperity, and it brings happiness to the people of the world. So we should prefer peace in order to live a happy and prosperous life. So my dear students, if we will look at the summary of the poem, from I Explain a Few Things, we can say that the poem I Explain a Few Things, it has been composed by Pablo Neruda.
The poem is a lamentation on Spanish Civil War, in which the noted poets and eminent personalities were killed. ये जो पोएम जो है ये डिपिक्ट करती है, ये डिस्क्राइब करती है लेमेंटेशन यानी सैडनेस, डीप सैडनेस when there was a civil war on Spain. In that war, noted poets and eminent personalities, बहुत बड़ी शख्सियात, बड़ी शायर इस जंग के अंदर वो मारे जा चुके थे. They were killed. The poet describes his journey from happiness to agony. The poet in this poem, he shows that his country, the people of the country, they were living in a peace, and this happiness turned into agony when the war was waged. He portrays the pre-war and post-war conditions of his motherland, and in this poem he describes the pre-war and post-war. Pre-war means before war, and what happened in the war, that is called post-war. जंग के बाद, इसके बाद क्या कंडीशंस हो गई उसकी मदरलैंड को, ये इस पोएम में डिपिक्ट की गई है. The poet describes despair, devastation, tyranny and damages through the symbols of jackals, banditus, stones, vapors, fire, bloodshed, blood and bullets. ये जो पोएम है इसमें डिस्क्राइब करता है कि डिस्पेयर, डिवास्टेशन, टायरनी, डैमेज, यानी इनके वो सिम्बल्स के थ्रू इसको डिस्क्राइब करते हैं. जैसे जैकल्स दिखाता है, बेंडिटस, स्टोन्स दिखाता है, विपर्स दिखाता है, फायर दिखाता है, ब्लड दिखाता है एंड बुलेट्स दिखाता है. द पोएम इज एन इमोशनल अकाउंट ऑफ द ट्रांसफरेंस ऑफ ए prosperous and beautiful nation into a ruined and destructed place through the words of a patriotic poet. ये जो पोएम है एक इमोशनल अकाउंट ऑफ ट्रांसफर, यानी इमोशनल अकाउंट है, इसमें दिखाया गया है कि किस तरह एक प्रॉस्परस एंड ब्यूटीफुल नेशन जो है वो तबाह हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है जंग के ज़रिए. He describes all these conditions to his friends. The poet describes these conditions to his friends. Federico Garcia Lorca and Rafael Albert, who were the martyrs of the Civil War. These were the two great personalities. These were the poets. They have been martyred. They have been killed in that particular war. As far as the first stanza of this poem is concerned, the poet describes his motherland in a very elegant way. यानी पहली स्टेंजा में शायर जो है अपनी इस मदरलैंड को, अपने इस मुल्क को एक खूबसूरत अंदाज में दिखा रहा है. एलिगेंट वे, इन ब्यूटीफुल वे. ही सेज दैट ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस दैट इज़ ए कंट्री. पोएट कहता है कि वो एक छोटे से घर में, एक मुल्क के अंदर रहता था. इन द कैपिटल ऑफ स्पेन, यानी स्पेन की राजधानी में, दैट इज़ मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है. His native place was full of church bells. उसकी जो नेटिव प्लेस थी, जो उसका आबाई गाँव था, दैट वाज फुल ऑफ चर्च. वहाँ पर बहुत सारे चर्च थे. चर्च बेल्स यानी हर रोज़ बेल वहाँ बजती थी प्रीस्टस, पादरियों के लिए, एंड वर्शिपर्स और जो बाकी इबादत गुजार हैं उनके लिए बेल्स बजती थी उन चर्चों के अंदर. क्लॉक टावर्स which kept them updated, and there were some clock towers and these clock towers kept them updated. वो उसको लोगों को अपडेट करते थे अबाउट देयर बिजनेस, अपनी बिजनेस के बारे में कि आपको कब जाना है, कब निकलना है. एंड ऑफिस वर्क्स के लिए वो उनको मतलब अपडेट करती थी वो क्लॉक टावर्स. इट आल्सो हैड लश ग्रीन ट्रीज एंड हिज कंट्री वाज हैविंग लश ग्रीन ट्रीज. खूबसूरत पेड़ वहाँ पर थे, हरे भरे पेड़ वहाँ पर थे. एंड हर्बेज एंड फ्लोरा फौना टू रिफ्रेश द एयर एंड ऑल. एंड दीज थिंग्स means green lush trees and herbages, they refresh the air all around. पूरे हवा को जो है ताज़ा करते थे. From his house he could see the beautiful place of Castile. अपने घर से वो एक खूबसूरत कैस्टाइल को देखते, surrounded by the ocean, full of enormous aquatic life. जो जिसकी सराउंड, जैसे इर्द गिर्द जो समंदर था,
फुल ऑफ इनॉर्मस एक्वेटिक, वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ थी, वहाँ पर जो पानी के अंदर जानवर रहते हैं, एक्वेटिक लाइफ वो थी, विच डिसाइड्स देयर इकोनॉमी, क्योंकि उस चीज़ से उनकी इकोनॉमी को मतलब बढ़ जाती थी, उनकी इकोनॉमी जो है बूस्ट हो जाती थी इन चीज़ों से, इस एक्वेटिक लाइफ से। हिज हाउस एंड हिज country was called the house of flowers. His house means his home and his country, they were called the house of flowers. उनको फूलों का घर कहा जाता था, because it was full of beautiful geraniums, क्योंकि ये फूलों से भरा हुआ मुल्क, खूबसूरत मुल्क था। People were very jubilant, the people जो है they were very much jubilant, they were very much happy with their families, अपनी घर वालों के साथ, and their children, and they kept dogs for recreation, and they all the people they kept dogs, उनके पास कुत्ते होते थे for recreation, यानी कुत्तों को पालने का रिवाज वहाँ पर था। The poet asks his friends to corroborate the fact. The poet asks his friends to support the fact that his country was very beautiful and peaceful. अपने दोस्तों को बोलता है कि आप मुझे सपोर्ट करो कि उसका जो कंट्री था दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री एंड अ पीसफुल कंट्री, और अमन वाला मुल्क था और खूबसूरत मुल्क था। ही वांट्स हिज डेड फ्रेंड्स टू रिकैप्चुलेट द ब्यूटीफुल मंथ ऑफ जून, यानी वो अपने मुर्दे दोस्तों को कह रहा है कि आप रिकैप्चुलेट करो, आप दोबारा याद करो उनके वो मंथ ऑफ जून को याद करो, विच इंस्पायर्स देम टू राइट ब्यूटीफुल पोइट्री। जो मंथ जो है, मंथ ऑफ जून जो है, वो इंस्पायर करता था खूबसूरत शायरी लिखने के लिए। ही मेक्स हिज बोरीड फ्रेंड्स रिमेंबर द ओल्ड वेदर व्हेन स्लो विंड्स मूव्ड द वेदर वैन्स, यानी अपने दोस्तों को यह भी कह रहा था कि आप वो ठंडा मौसम याद करो जब धीमी धीमी हवाएं उठती थी। ही टेल्स देम अबाउट द इनॉर्मस प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स, यानी इनको इनकी तरफ भी मतलब उनका तवज्जो मबजूल कराना चाहता है कि उसके मुल्क के अंदर देयर वर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स, यानी वहाँ पर बहुत सारी फसल उगती थी, लाइक पोटैटोज एंड टमेटोज। दस ही गिव्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ prosperous and marvelous Spain. So he gives a beautiful picture of his nation, that was a prosperous nation, and that was a very splendid nation, that was a very marvelous nation. So you can see it by your own. This is the central idea, and tomorrow we will see the next part of this. So thank you, have a nice day.